This is Fatma Imran, and today we are going to discuss Mustafa Kamal Pasha, that is a 15th chapter in second year English. To understand Mustafa Kamal, we need to know the brief introduction of the history of that time. That was the era in which First World War was fought. First World War was fought between two main powers. First was called Allies, and the second was called Central Powers. In the Allies, main countries were Russia, Great Britain, United States, France, Italy, and Greece. And in the Central Powers, there was Germany, that was the superpower, and with it Bulgaria and Ottoman Empire, that is Turkey right now. Let's discuss question and answers of Mustafa Kamal. First World War was ended and Ottoman Empire with Germany they were defeated. So after that war in 1988 this all scenario created. So you have to understand it before moving towards question and answers. First question is what was the attitude of the Turkish government towards the allies after World War One? कि जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुई तो जो तुर्की की उस वक्त की गवर्नमेंट थी जो भी बादशाह था जो भी बादशाह था महमद फोर उसका एटीट्यूड एलाइज की तरफ क्या था तो इसको हमने देखना है आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन द टर्किश गवर्नमेंट एंड द बादशाह हिमसेल्फ वर ईगर टू वर्क टुगेदर विद एलाइज they thought it in the best interest of the nation to cooperate with the allies simple is that कि उन्होंने मतलब आगे से लड़ने के बजाय उन्होंने ये किया कि सरेंडर कर लिया और उन्होंने ये शो किया कि हम इत्तेहादी जो भी ममालिक हैं उस वक्त जो कि कनकर्ड कंट्रीज थे जो जीत चुके थे वर्ल्ड वॉर वन उनके साथ मिलकर चलने में ही हमारा फ़ायदा है तो ये आपने मेन पॉइंट याद रखना है सेकंड क्वेश्चन इज़ वाई वॉज मुस्तफ़ा कमाल सेंट टू अनातोलिया कि मुस्तफ़ा कमाल को अनातोलिया क्यों भेजा गया In Anatolia, some undefeated soldiers of Ottoman army began to hinder the allied forces. Their leader refused to disband his men. Turks were growing bolder and their activities increased. Mustafa Kamal was sent there to deal with the situation. एक्चुअली मुस्तफ़ा कमाल वो बंदा था उस वक्त जो आप कह सकते हैं कि ही वॉज़ ब्रेव ही वॉज़ बोल्ड ही वॉज़ फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड तो उन्होंने इसको चूज़ किया कि हम मुस्तफ़ा कमाल को भेजें और उनको ये चीज़ रियलाइज़ करवाएं कि जब गवर्नमेंट ने एलाइज़ के साथ इत्तेहाद करने का फ़ैसला कर लिया है तो बाकी लोग भी सरेंडर कर लें क्योंकि तुर्को जो उस वक्त के लोग थे जो आर्मी के लोग थे वो हथियार डालने को हार मानने को तैयार नहीं थे इसलिए मुस्तफ़ा कमाल को अनातोलिया भेजा गया था hopefully you would have understood the basic purpose of these questions and the main points to remember. In question 1, allies and the Turkish government they were on same page. And in the second question, Mustafa Kamal was sent to Anatolia to talk to the people who were not ready to surrender in front of allies. This is the main thing. These are the main points that you have to remember. Move towards question number 3, that is what was the reaction of Turkish patriots to the intentions of the allies to partition the Ottoman Empire. तो the reaction of the patriots was very severe कि उनका रिएक्शन जो था जितने भी मुहिब वतन तुर्की थे उस वक्त उनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा सख्त था they were furious at the intentions of the allies a flame of anger was burning in the hearts of all the Turks they were determined to fight against the allies and the Greeks तो जो मेन चीज़ है वो याद रखनी है कि जो उस वक्त की टर्किश आर्मी थी और जो लोग थे उनका जो एक एटीट्यूड था उनका जो रिएक्शन था वो बहुत ज़्यादा सख्त था क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं राइट अ नोट ऑन मुस्तफ़ा कमाल्स एक्टिविटीज़ इन अनातोलिया कि अनातोलिया उसको भेजा गया था ताकि वहाँ जाकर वो जितनी भी रेजिस्टेंस है उसको फेस करे उसको कम करे लेकिन उसने जाकर वहाँ क्या किया तो इसको देखते हैं इन अनातोलिया मुस्तफ़ा कमाल हेल्ड अ सीक्रेट मीटिंग ऑफ पैट्रियट्स ही मेड हिज प्लान ऑफ रेजिस्टेंस He toured the villages to activate the people. The news arrived that the Greeks were advancing toward Izmir and Aydin. Everywhere, Turks came to fight against the enemy under the leadership of Mustafa Kamal. तो अब इसका आंसर सिंपल है कि अनातोलिया जाकर उसने गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को आगे फॉरवर्ड करने के बजाय वो ख़ुद चूँकि एक बहुत बड़ा पैट्रियट था उसने अपने जैसे हम ख्याल लोगों को वहाँ पर जमा किया उनकी मीटिंग की और उसने ये प्लान किया कि हम सरेंडर करने के बजाय रेजिस्ट करेंगे ग्रीक्स के ख़िलाफ़ भी और जितने भी एलाइज़ हैं उनके ख़िलाफ़ हम रेजिस्ट करेंगे Let's move towards question number 5. Why did Mehmed order Mustafa Kamal to return to Constantinople? मेन उसका जो उस वक्त का दारुल हुकूमत था इस्तांबुल जो आजकल है उसमें वापस आने के ऑर्डर्स क्यों इशू किए उसने तो इसको देखें महमद ऑर्डर्ड मुस्तफ़ा कमाल टू रिटर्न टू इस्तांबुल
The Sultan was a puppet in the hands of the allies. He was a coward. His idea of the best interest of Turkey was cooperate with the allies. कि अब चूंकि उसको इंटेंशंस पता चल चुकी थी मुस्तफ़ा कमाल की कि वो जाकर उसके ऑर्डर्स कन्वे करने के बजाय लोगों को रेजिस्टेंस पर तैयार कर रहा है, तो वो एलाइज के साथ कोई भी उस वक्त टसल लेने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने मुस्तफ़ा कमाल को ऑर्डर्स किए कि वो वापस आ जाए. लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज व्हाट वाज मुस्तफ़ा कमाल्स रिप्लाई, कि उसने क्या रिप्लाई किया. In his reply, Mustafa Kemal urged Padishah to come to Anatolia and himself lead the patriots against the foreign enemies. He wrote that it was the last chance to save himself, the throne of his ancestors and the Turkish nation. उसने बादशाह को कहा कि आप आएँ यहाँ पर और आप खुद आकर हम सबकी रहनुमाई भी करें और हम सबको लीड भी करें. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मेहमद ट्राई टू रीगेन अनातोलिया फॉर हिमसेल्फ. तो इसका आंसर हम देखेंगे. Mehmed tried to regain Anatolia by intricacy. He announced the summon, a government pleasing to nationalists. The delegates could transfer their activities to Istanbul. उसने ये कहा, उसने एक मतलब एक किस्म की चाल चली कि उसने सारे जो पैट्रियट्स थे, नेशनलिस्ट थे, उनको कहा कि जी आप आ जाएं, इस्तांबुल आ जाएं, जो हमारा कैपिटल सिटी है वहाँ पर आएँ और मेरे सामने आप बैठ के सारी एक्टिविटीज़ करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है. तो आगे है जी, वाई डिड हिज प्लान फेल. Mehmed's plan to regain Anatolia failed because Mustafa Kemal rejected his offer. Mustafa Kemal continued his activities in Anatolia. He continued his struggle against the allies and the Greeks. Now the most important question of this chapter, what were the terms offered to Turkey by the allies? So the terms of the treaty were like death punishment. Ottoman Empire was to be entirely under the control of allied powers. Eastern Anatolia was to be added to Armenia. Izmir was to be a Greek district. Sicilia was to go to France. Istanbul was to be an international center under the control of Britain, France and Italy. अब ये देखें कि किस तरह से उन्होंने हिस्से कर दिए. उन्होंने टर्म्स ऑफ़र की कि हम जी पीस चाहते हैं, लेकिन ये हम ट्रीटी जो है इस पर आपको अमल करना पड़ेगा. और वो ट्रीटी क्या थी कि उन्होंने सारे इज़मीर और बाकी जो इनके रिच प्रोविंसेस थे उनको आपस में इस तरह बांट लिया कि वो ज़ाहिरी तौर पर भी अपेरेंटली भी वो काबिल कबूल नहीं था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ द ग्रीक अटैक एंड इट्स डिफीट. तो हम ये देखेंगे कि ऑन अगस्त 1921 द ग्रीक्स अटैक्ड इन द माउंटेन रीजन. द ब्रेव पीपल फॉट मैन टू मैन फॉर 15 days. द ग्रीक्स वर अटैकिंग fearlessly. द टर्क्स वर रिस्पॉन्डिंग ब्रेवली. Let's move towards next question, that is give an account of the departure of Mehmed from Istanbul. It was November 17, 1922. A British motor ambulance came up to the palace where Mehmed was staying. Some baggage was brought out and placed in the car. Mehmed, who was an elderly man, followed. He sat in a vehicle, the door was closed and the ambulance drove away to exile. कि अब आप ये देखें ये जो टसल 1918 से स्टार्ट हुई वो किस चीज़ पर रिज़ल्ट हुई कि 1922 में मेहमद को अपना ही मुल्क छोड़ना पड़ा, कि वो अब अपने ही मुल्क के लोगों के साथ रहने के काबिल नहीं था, कि वो अपने मुल्क के लोगों के राइट्स को ही डिफेंड नहीं कर सका, तो उसको एग्ज़ाइल पर शिफ्ट होना पड़ा. एक एम्बुलेंस आकर उसको वहाँ से ले गई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय मुस्तफ़ा कमाल. अब ये आपने गौर से देखना है क्योंकि रिफॉर्म्स जो मुस्तफ़ा कमाल ने की थी इस पर एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आ जाता है. तो रिफॉर्म्स वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हो सकती हैं, वो उसकी जो विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर उसका काम है उस पर भी हो सकती हैं, जो उसने सारा ओवरऑल स्ट्रक्चर को बेहतर किया, अपनी जो उनका एक यूँ समझ लें कि हरूफ तहज्जी जिसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं उसको उसने बेहतर किया, उसने एजुकेशन पर जितना काम किया, उसने जितने हेड ड्रेसेस को चेंज किया, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है. तो इसमें आप देखें, सबसे पहले हम देखेंगे द पोजीशन ऑफ वुमेन. मुस्तफ़ा कमाल बैंड टू ऑब्जर्व वेल, पर्दे पर पाबंदी लगा दी उसने. ही स्ट्रेस द नीड ऑफ द हायर एजुकेशन फॉर देम, उसने ख़वातीन की एजुकेशन पर काम किया. ही अनाउंस दैट वुमेन शुड बी एजुकेटेड इन एवरी फील्ड ऑफ साइंस. साइंस एजुकेशन की तरफ वो वुमेन को लेकर आया. दे वुड रिसीव द सेम डिग्री एज मैन, इक्वलिटी एजुकेशन में वो लेकर आया. तो ये आपने उसकी चीज़ें याद रखनी है. नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय मुस्तफ़ा कमाल विद रेफरेंस टू द इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इसको हम देखते हैं. द इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मुस्तफ़ा कमाल लॉन्च्ड ग्रेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन schemes for railway and roads. In 1919, there were 150 factories in Turkey, while in 1933 the number rose to 2,000.
कि जो 1919 में जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई तो सिर्फ 150 फैक्ट्रीज़ थीं, लेकिन जब मुस्तफ़ा कमाल ने 1933 तक काम किया तो 2000 फैक्ट्रीज़ की तादाद हो गई. इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट. He started the 5 years plan and encouraged heavy industry. The banking system was organized and the public debt was reduced to 1/10. कि सबसे पहले उसने जो काम किए वो बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना था, डेप्ट को ख़त्म करना था. मतलब उसने जो कर्ज़ा लिया हुआ था वो उसने वहाँ पर अपने कंट्री से उसको ख़त्म करके रिड्यूस करने के लिए बहुत कोशिश की. Let's move towards next question. Describe the reforms introduced by Mustafa Kamal with reference to the removal of illiteracy. Adoption of the Roman script education policy. तो इसको ज़रा गौर से देखिएगा. रिमूवल ऑफ इलिटरेसी और एजुकेशन पॉलिसी क्या थी? मुस्तफ़ा कमाल फर्स्ट ऑब्जेक्ट वॉज टू एजुकेट द पीपल. देयर वॉज नो स्टेट एजुकेशन इन टर्की. मुस्तफ़ा कमाल रिप्लेस द ओल्ड स्क्रिप्ट विद रोमन स्क्रिप्ट. कि उसने स्क्रिप्ट ही बदल दिया कि जैसे हम ABC लिखते हैं, अलिफ बेते लिखते हैं, तो ये एक स्क्रिप्ट होता है. तो उसने अपने ओल्ड स्क्रिप्ट जो शायद अरेबिक था या पर्शियन था या मिक्सचर था, उसको उसने चेंज करके रोमन में कन्वर्ट कर दिया. ही हिमसेल्फ डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ टू यूज़ न्यू स्क्रिप्ट. अब ऐसा नहीं था कि उसने दूसरों को कहा कि इसको यूज़ करें, उसको तो उसको आता ना हो. उसने खुद लोगों को जाकर सिखाया कि इसको कैसे यूज़ करना है. Next, he tried to simplify the Turkish language. He banished all the Arabic and Persian words from the Turkish language. उसने टर्किश लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया. उसमें जो भी फ्लावरी लैंग्वेजेस थीं जो पर्शियन और अरेबिक से आई थीं उसने उनको ख़त्म कर दिया. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय मुस्तफ़ा कमाल विद रेफरेंस टू चेंजेस इन ड्रेस. तो ये भी आप देख लें कि मुस्तफ़ा कमाल मेड मैनी चेंजेस इन ड्रेसेस ऑल्सो. ही अबॉलिश द वेल फॉर वुमेन. ही बैंड द हेड ड्रेस कॉल्ड ऑल्सो फेज. द वियरिंग ऑफ हेड्स वॉज मेड कंपल्सरी. तो ये उसकी जो चेंजिंग्स थी जो उसने की हेड ड्रेस में और रिमूवल ऑफ इलिटरेसी में. तो इसको आप अच्छी तरह से जहन में बिठा लीजिएगा. मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है. इसको इम्पॉर्टेंट समझ कर ही करें ताकि आपकी प्रेपरेशन जो है पेपर्स के लिए वो अच्छी हो जाए. And let's move towards its summary so that you should understand all the things and all the concepts very clearly. मेन पॉइंट्स में आपने चीज़ें याद रखनी है. रिफॉर्म्स जिसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स थी, लीगल रिफॉर्म्स थी, एजुकेशनल रिफॉर्म्स थी, और इसके अलावा नेक्स्ट जो था वो सोशल रिफॉर्म्स थी. ठीक है, ये रिफॉर्म्स आपने अच्छी तरह याद रखनी है. जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन की एफ़र्ट्स की थी वो, वुमेन राइट्स की तरफ जो उसकी एफ़र्ट्स थी वो, ये सब चीज़ें आपने वन बाय वन याद रखनी है ताकि आपको जहन से फिर मिस ना हो. और इसके अलावा आपने फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो बैकग्राउंड आप समझाया गया आपने उसको अच्छी तरह से याद रखना है. तो अगर आप पूरा सिनेरियो अपने माइंड में एक बार बना लेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ों को भूलना प्रॉब्लम नहीं होगा. थैंक यू वेरी मच. Like, subscribe and share the video if you like it and if you find it beneficial for you. Thank you very much. Thanks for listening.